এটা হচ্ছে মানব জাতির জন্য করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনটা খুব সুন্দর শান্তিময় হতে পারে। প্রত্যেকেরই দরকার করা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি যে গীতা প্রতিদিন পাঠ করা উচিত, পাঠ করলে চলবে না। তার মানে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি এটা জিপি সিরিজে পেরেছে। তার মানে যেটা অনেকেই একটু একটু মানে স্মৃতিভ্রম হয়েছিল, সেটা একেবারে এবারে এই যে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে অনুরণিত হবে, আর তার ফলেই কিন্তু নিশ্চিত হবে এখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই একেবারে ইসলাম দূষণকারী হিন্দু বিরোধী যে পশ্চিমবঙ্গের যে রাজ্য সরকার তার বিসর্জন। হিন্দু সমাজ জাগ্রত হয়েছে, আর কালকে এই যে ঘন্টা, সেই ঘন্টা দেখবেন একবারে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে গেছে। এই তো হচ্ছে এটা ইমপ্ল্যান্টেড কিনা সেটাও ভাবার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ইমপ্ল্যান্ট করেছেন এটাকে, আবার পরে উনি হয়তো লিখে নেবেন, এটা ওনারই হয়তো পরিকল্পিত বিষয়। এই মাত্র আমার একজন সাধু মহারাজের সঙ্গে দেখা, এই যে আগামীকালের কর্মযজ্ঞে ইতিমধ্যেই 200টি বিভিন্ন নামের আশ্রম তারা সংগঠিত হয়েছে। সমাজের ডাকে তারা বড় ছোট ভেবে লাভ নেই। হিন্দু মানে হিন্দু, হিন্দুরা একত্রিত হও, আগামী দিনে যেন সকল হিন্দুরা সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে নামতে পারা যায়, সেটাই মেসেজ, আর কিছু না। আমাদের একটা মুক্তি অনুষ্ঠান এখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে আমরা বিশ্ব হিন্দু করেছি। স্টলের নাম্বার হচ্ছে R6। দয়া করে সবাইকে শুভেচ্ছা, অনেক আসবেন আমাদের সাথে যুক্ত। এটা হচ্ছে জীবন ধর্মগ্রন্থ, এটা হচ্ছে একদম পুরো সায়েন্টিফিক। যেসব তরুণ সমাজ এই গীতাকে ফলো করবে তারা জীবনে সাকসেসফুল হবে, এবং গীতা হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক গীতা। এই গীতার প্রত্যেকটা ছন্দ বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত আছে। গতবারে হয়েছিল এটা, সব হয়েছিল লক্ষ কণ্ঠে গীতা, কিন্তু লক্ষ ছাড়িয়ে প্রায় 5 লক্ষ হয়েছিল এবারে, কিন্তু সেই জন্য কার্যকর্তারা 5 লক্ষ টার্গেট রেখেছে। এটা খুব আনন্দের, সৌভাগ্যের, আমরা এখানে আসতে পারছি এবং কালকে আমরা এটাকে সচক্ষে দেখব। धर्म के लिए युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए, क्योंकि युवा ही इस राज्य का ही क्यों इस देश का भविष्य होते हैं। युवाओं के लिए यह धर्म अत्यंत आवश्यक है। गीता का ज्ञान जीवन के समस्त रूपों को दर्शित करता है, समस्त समस्याओं का नाश करता है। इसलिए इन समस्याओं को सुलझाने के लिए गीता का सार अत्यंत आवश्यक है। गीता के हर श्लोक को ध्यान में रखकर, गीता का ध्यान रखकर इन युवाओं को अपने जीवन में इस गीता को लक्ष्य में लाकर अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल करना चाहिए। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से धर्म के विरुद्ध लोगों का आक्रामक रूप देखा जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर सनातन के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, यहाँ पर ऐसे धर्म का अनुष्ठान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जहाँ धर्म विलुप्त हो जाता है, वहाँ पर पाप का संचय होता है, और पाप का संचय होने पर पूरे राज्य को दुख से होकर अग्रसर होना पड़ता है। इस दुख के निवारण के लिए इस पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हो रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, इस पश्चिम बंगाल में लाश सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर लाशों की आंखों को चुरा लिया जा रहा है, उनके अंग प्रत्यंग के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, गोलाबाजी है, गुंडागर्दी है। इन सब के विरुद्ध
एक धर्म को अगर किया जाए तो कुछ पुण्य का संचय कर इस पश्चिम बंगाल के उद्धार को किया जा सकता है। और इस पश्चिम बंगाल में धर्म का संचय कर यह राज्य सुख पूर्वक समस्त राज्यों में एक संदेश फैलाने के लिए कि गीता पाठ के द्वारा इतने लोगों को एकत्रित किया जा सकता है, पूरे राज्य को एक मैदान में संचित किया जा सकता है, पूरे राज्य के लोगों को एक मैदान में लाया जा सकता है। इसी रूप को दिखाने के लिए इस गीता के पाठ का आयोजन किया गया। সনাতন ধর্মের লোক, আমি সনাতন ধর্মকে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসি এবং সনাতন ধর্মের উপর যদি কেউ আঘাত করে তাহলে আমি সেটা কখনো মেনে নিতে পারি না বা সহ্য করতে পারি না। তাহলে আমি একটা সংজ্ঞা দিয়ে বলছি, সনাতন ধর্ম কাকে বলা হয়? যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি সত্যস্বরী, যিনি সত্যের মূল, যার কোনো আদ্যন্ত নেই, তিনি সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্ম মানুষকে আঘাত করতে জানে না, ভালোবাসতে জানে। এই সনাতন ধর্ম মানুষের কাছে প্রতিশোধ নিতে জানে না, ক্ষমা করতে জানে। অথচ সেই সনাতন ধর্মকেই হিন্দু হয়ে হিন্দুত্ববোধ হারিয়ে রাজ্য লোভে, অর্থ লোভে, গতি লোভে, ক্ষমতা লোভে, ভোটে লোভে, চাকরি লোভে, হ্যাঁ, সেই সনাতন ধর্ম শাসমত তলে ফেলে দিচ্ছে। তাহলে একটা देखिए, श्री कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे, श्री कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे, श्री कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। देखिए, अभी का जो युग है और अभी का जो समय है, भारत जो है संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। और सनातन का जिस तरह से काम हो रहा है, उसमें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अपना पीछे न रह जाए, इसके लिए जो है हम लोग इस तरह का आयोजन करें। पिछले साल भी 1 लाख लोगों को लेकर के यहाँ इसी स्थान पे, इसी मैदान में गीता का पाठ हुआ था। अब इसका जो आयोजन है 5 लाख लोग जो है गीता का पाठ करेंगे और पूरे पश्चिम बंगाल के लोग, पूरे सनातनी समाज के जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, जिनको भी इस सनातन में विश्वास है, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के और भारत माता की जयकारा करेंगे। सनातन मतलब भारत माता की जय, सनातन मतलब आपके मस्तक का तिलक, सनातन मतलब आपका जल, हवा, जल, वायु, सब सारा चीज होता है जो पंच तत्व से मिला है। मतलब सनातन इस मिट्टी में रचा बसा हुआ है और उसी की जयकारा करने के लिए इस कुरुक्षेत्र रूपी मैदान में हम लोग इकट्ठे हुए और पिछले 15 दिन से लगातार आप मैदान में देख सकते हैं चारों तरफ जी काम चल रहा है। और कल जो है यह सफलतम आयोजन होगा और सभी यहाँ पे जो आयोजन करता है काफी उत्साहित है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे विभिन्न जिलों से कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके सुख सुविधा का, खाने पीने का, रहने का, उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो, सामग्री बहुत सारा सब पैकेट बनेगा, पैकेट बनेगा, इस तरह की जलपान फलाहार जो है सब जिस प्रकार कई जगह से साधु संत आए हुए हैं अलग अलग जगह से, उन सब का देख रेख करना हम सबका दायित्व है। तो इस तरह का हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। प्रशासन जो है अपने तरीके से जो है मुस्तैद है, यहाँ का पूरा जो लोग है, जो शासनिक व्यवस्था है, वो अपने तरीके से ये दिखाते हैं। धन्यवाद। एक तो सनातनी ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। वेद प्रचार ट्रस्ट, देखिए कितना बढ़िया, वेद प्रचार ट्रस्ट के द्वारा और साथ से योगाचार्य ओम प्रकाश मस्करा जी के तत्वाधान से यहाँ जो कल 5 लाख लोग सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वेद के जानकार, बड़े बड़े हमारी साध्वी, उनके तत्वाधान में देखिए एक एक संस्था ने सनातन कितना जागरूक है। देखिए ऐसे कम से कम सैकड़ों संस्थाओं ने अपनी बुक्स भेजी है, हजारों के हिसाब से बुक्स बांट रहे हैं। तो ये तो सनातन को जागरूक करने का इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए मैं सनातन परिवार की ओर से, सनातन ट्रस्ट की ओर से, खासतौर से योगाचार्य ओम प्रकाश मस्करा जी को और साथ साथ वेद प्रचार ट्रस्ट जो हमारा कलकत्ता का है, ये संयोग से मैं उसी इलाके में हूँ और मेरी ये कंस्टिट्यूंसी भी है, इसी इलाके में नीलांबर में ये ऑफिस है इनकी। इनको मैं बहुत बहुत इस ट्रस्ट को भी धन्यवाद दे रहा हूँ पूरे सनातन परिवार की ओर से कि ट्रस्ट को आगे बढ़े और इसी ढंग से सनातनियों की सेवा करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस जैसे तपस्वी इस धरती पे पैदा हुए, माँ शारदा जैसे देवी यहाँ पैदा हुई। ये धरती हरदम सनातनों की धरती रही है। गंगा सागर आपको मालूम है कि सनातन धर्म वालों की दुनिया में
सबसे बड़ा स्नान गंगा सागर ही 14 और 15 जनवरी को होगा, हर साल मकर संक्रांति में होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सनातनी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितनी हमारी सनातनी हिंदू संस्थाएं हैं इनको। शायद मेरे ख्याल से ये कुंभ के बाद 2023 में हम लोगों ने इसी ग्राउंड में किया था गीता पाठ, और उससे भी बड़ा भव्य आप देखेंगे कल सुबह से 5 लाख से ऊपर सनातनी गांव-गांव से, जिले-जिले से, चाहे वो उत्तर बंगाल हो, रणबंगो जोन हो, दक्षिण बंगाल हो, मिदनापुर जोन हो, सागर हो, डायमंड हार्बर हो, तमाम इलाके के अंदर से काफी बड़ी संख्या में सनातनी लोग आएंगे। ये धरती प्रत्येक समय सनातन को बचाने के लिए आगे आए हैं, और निश्चित तौर पे जिसे रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, गोड़िया मठ, भारत सेवाश्रम, ये सभी बड़े सन्यासी जिस ढंग से सनातनी जो गांव में बैठे हैं या गांव में सोए हैं, जो विमुख हो गए, उन लोगों को लाके इस ग्राउंड के अंदर में, आप लोगों को मालूम ही होगा कल श्री श्री बागेश्वर धाम की पतंजलि पीठ के प्रमुख रामदेव बाबा, श्री उसके बाद कई बड़े बड़े और महान संत सागर जम्बरा जी वो भी आ रही हैं, बहुत महान संत लोग सब आ रहे हैं। कल आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक समागम, और ये कल का समागम